Hi there, U-turners and our dear young partners. हेलो यूटर्नर लोग और हमारे प्यारे युवा सहभागी लोग, It's good to see you in September. सितंबर महीना में आपसे मुलाकात करना बड़ा खास बात है। Today, for the month of September, God promises as per Romans 5:5 for us. सितंबर महीना में परमेश्वर का वादा रोमियो 5:5 से लिया गया है। And hope does not put us to shame, और आशा में लज्जा नहीं होती है, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। God's love is going to be poured out into our hearts परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में उंडेला जाएगा right now. इसी वक्त। Get ready to receive it in full, पूरी तरह से इसको पाने के लिए आप तैयार हो जाएं, because God promises this month that He is going to bring the right love into your lives. इस महीना परमेश्वर वादा किए हैं आपके जीवन में सही प्रेम वो लेके आएंगे, The right love that you need. सही प्रेम जिसका आपको आवश्यकता है। Today you might be experiencing a lack of love in your heart, शायद अपने दिल में प्रेम की कमी आप महसूस कर रहे हैं, or a big emptiness. बहुत ज्यादा खालीपन है। You might be longing for love. शायद आप प्रेम के तलाश में भटक रहे हैं। God is speaking directly to you, परमेश्वर सीधी रूप से आपसे बात कर रहे हैं that through His Spirit He is going to pour His love into each one of us. उनके आत्मा के माध्यम से आप सभी के ऊपर अपना प्रेम वो उंडलने वाले हैं। There was a lady called Mrs. Pinky. पिंकी नाम का एक बहन थी। She was living in Jharkhand and with her husband and her 6-month-old child. वो झारखंड में अपने पति और 6 महीना का छोटा बच्चा के साथ जी रही थी। And at that point, her husband started getting addicted to alcohol and he used to drink a lot. उस वक्त उनके पति शराब के व्यसन से आदी हो गए, बहुत शराब पी रहे थे। And he entered into a wrong relationship with another woman and he left both of them. और एक दूसरे औरत के साथ गलत रिश्ते में बांध गए और अपने पत्नी और बच्चे को छोड़ दिए। He went and settled in Rajasthan. और राजस्थान में जाके वो अपना घर बसा लिए। And he didn't support both of them at all. He forgot about them. वो दोनों को बिल्कुल सहायता नहीं किए, उन दोनों के बारे में बिल्कुल भूल गए। Never contacted them. उनके साथ कोई संपर्क नहीं रखे। Mrs. Pinky used to serve the Lord and pray for other people. बहन पिंकी परमेश्वर का सेवा कर रही थी और लोगों के लिए प्रार्थना में शामिल थी। But because of this distress, she was so depressed. इस हताशा के कारण उनके जीवन में बहुत ही निराशा छाया हुआ था। Heartbroken. उनका दिल टूट गया था। 6-month-old child, little baby, and how is she going to support the child all alone? 6 महीना का छोटा सा बच्चा था, उसको किस तरह से उसका सहायता वो कर सकती थी अकेली? She lost her love of the husband. पति का प्रेम से वो वंचित थी। Eventually, she couldn't put the child in school. और उस बच्चे को स्कूल में दाखिला नहीं कर सकी। And 6 years passed like this, no call, no contact from the husband. 6 साल ऐसे ही बीत गया, पति के पास से कोई समाचार, कोई संपर्क नहीं हुआ। She was struggling. वो अकेले संघर्ष कर रही थी। She wanted to end her life and her son's life. वो खुद का, अपना बच्चे का जीवन समाप्त करना चाहती थी। But God intervened and stopped it. लेकिन परमेश्वर उस जगह हस्तक्षेप किए और रोक दिए, Saved them. उनको बचा लिए। And slowly she started giving her life again to serve the Lord and minister to Him. और धीरे धीरे अपना जीवन फिर से परमेश्वर के हाथ में सौंप के परमेश्वर का सेवा करना फिर से शुरू की। And at that point, as she was watching TV one day, और उस वक्त जब टीवी में हमारी कार्यक्रम वो देख रही थी, my father, Dr. Paul, was ministering. मेरे पिताजी डॉक्टर पॉल दिनकरन सेवा कर रहे थे। And in that program, a testimony of a wife getting back with her husband after their divorce came. उस कार्यक्रम में एक पत्नी अपने पति को तलाक के बाद वापस पा ली, वो गवाही आ रही थी। Miraculously, God had united them after prayer. आश्चर्य रूप से परमेश्वर प्रार्थना के बाद उनको बिल्कुल एक कर दिए थे। And they were so happy. और वो बहुत खुश थे अपने जीवन में। She immediately got so much belief. ये बहन पिंकी के जीवन में बहुत बड़ा विश्वास आया। And a peace came in her heart to forgive her husband also. उनके दिल में एक शांति उतर गई ताकि अपने पति को माफ कर सके। She also felt so much joy वो भी बहुत आनंदित हो गई as Dr. Paul prayed. जब डॉक्टर पॉल दिनकरन प्रार्थना की। Just a short while after, her husband called her out of the blue.
उस कार्यक्रम के थोड़ी देर बाद उनके पति अचानक उनको फोन किए And he repented and said, "Please forgive me. I have wronged you. वो पश्चाताप किए और कहे मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, I want to come back." मैं वापस आना चाहता हूँ। And she was so overjoyed to receive that call. वो कॉल पाके बहुत ही आनंदित हो गई। वो They got back together, फिर से एक साथ हो गई started praying to the Lord together. और एक साथ परमेश्वर के पास प्रार्थना करने लगी And in a while, they started ministering together. और थोड़े दिन बाद साथ साथ सेवकाई में शामिल होने लगी। With their testimony, they are a blessing to so many families today. उनके गवाही के माध्यम से कई परिवारों के लिए वो एक आशीष का कारण है। They go around ministering happily and serving the Lord together as one family. एक परिवार होने के नाते हर तरफ जाके परमेश्वर का सेवा वो कर रहे हैं। And today, the child also has joined 5th standard and is studying in school. वो बच्चा भी आज 5वीं क्लास में पढ़ रहा है और स्कूल में शामिल हो गया है। What joy and completeness God has brought in this family. कितना आनंद और परिपूर्णता परमेश्वर इस परिवार में लाए हैं। God will bring that love into your life also. परमेश्वर आपके जीवन में भी प्रेम शामिल करेंगे। Right in your family where there is so much gap in love. ठीक आपके परिवार में जहाँ बिल्कुल प्रेम नाम का कोई चीज है ही नहीं, God is going to bring a oneness and an understanding in each of your dialogue with each other. परमेश्वर आप सभी के जीवन में एक एकता और एक समझ लेके आने वाले हैं। If you look at this verse in the Bible, बाइबल में अगर इस वचन को आप देखेंगे, Ephesians 4:3, एफिसियों 4:3 में ऐसा लिखा है, make every effort to keep the unity of spirit through the bond of peace. और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने में यत्न करो। Yes, this love is going to move in each one of your hearts to bring a peace of God. ये प्रेम आप सभी के दिल में उतरने वाली है ताकि परमेश्वर की शांति आप सबको पाना है। And the Holy Spirit who pours this love is going to take control and start speaking in unity in each other. और पवित्र आत्मा जो सारे बातों का नियंत्रण करते हैं, आप सबों से बात करेंगे और आप सबों को बिल्कुल एक कर देंगे। You're going to move in God's will together as a family. एक परिवार होने के नाते परमेश्वर की योजना में आप एक साथ चलने वाले हैं। Love in the family. परिवार का प्रेम के माध्यम से Receive this blessing. इस आशीष को आप पालें। Even in your relationships. आपके रिश्ते में भी Sometimes we are so infatuated and we're so attracted by the beauty of a person. एक इंसान की खूबसूरती की ओर हम बड़ा जल्दी खींचे चले जाते हैं That our heart simply leaves everything else and follows that person. हमारा दिल हर एक बातों का दरकिनार करके उस व्यक्ति के ओर पीछा करता है। You sacrifice everything else for just that love. उस प्रेम के लिए जीवन की सारी बातों को आप त्याग देते हैं। But today in that love, are you leaving behind God? क्या उस प्रेम के चलते आप परमेश्वर को आप खो रहे हैं? We have to be very careful. हमें बहुत ही सावधानी बरतनी है। My friends, मेरे मित्रों, in this also fear the Lord. इस बात में भी परमेश्वर से आपको डर रखना है। Am I keeping clinging on to you, Lord? क्या मैं परमेश्वर आपको थामे हुए रह रहा हूँ? Or am I leaving you behind and following the love of this person? और क्या आपको पीछे छोड़ के इस व्यक्ति के प्रेम की ओर मैं आकर्षित होते जा रहा हूँ? It's so easy to be attracted in school and college. स्कूल या कॉलेज में किसी की ओर आकर्षण होना बड़ा आम बात है। But Proverbs 15 and 16 says, लेकिन नीति वचन 15 उसको 16 में ऐसा लिखा है, better a little with the fear of the Lord than great wealth with the turmoil. घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। Without the Lord, what blessing is there in that relationship? बिना परमेश्वर का उस रिश्ते में क्या आशीष रखा है? How will that relationship stand the test of time? उस रिश्ता समय के पटरी पे कैसे खरा उतर सकता है? How will that love survive the troubles of the world? वो प्रेम जगत की परेशानियों का कैसे सामना कर सकता है? How will it survive the temptations of the devil? शैतान का प्रलोभन से उस प्रेम कैसे बच सकता है? Fear the Lord in your decision, my friends. मेरे मित्रों, अपने निर्णय में परमेश्वर से आप डर रखें। To keep him in the center of everything, every choice. आपके हर एक पसंद के बीच में परमेश्वर को आपको शामिल करना है। Be sure that everything you choose is the choice of God for you. आप निश्चित करें कि जो कुछ भी आप चुनते हैं वो परमेश्वर का पसंद है आपके लिए। That's how I feared the Lord, that the Lord shouldn't leave me because I made this choice myself.
इसलिए मैं परमेश्वर से डर रखा कि परमेश्वर मेरे इस निर्णय के लिए मुझे छोड़ ना दें। And He's blessed me with a wonderful wife today. एक बेहतरीन पत्नी से परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है। Yes, today, as you fear the Lord will bless you with greater wealth that you can ever think of. आज अगर परमेश्वर से आप डर रखते हैं, परमेश्वर आपके सोच से बढ़ के आशीष आपको देने वाले हैं। The fear of the Lord is better than great wealth with turmoil. परमेश्वर का डर बहुत धन जो परेशानी से भरा हुआ है उससे बेहतर है। How can we enjoy that wealth without God? उस धन का आनंद बिना परमेश्वर का कैसे हम ले सकते हैं? And finally, I know that as you're longing for a partner, the Lord is going to make you find the right love this month. अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे एक जीवन साथी पाने के लिए आप आतुर हैं, इस महीना परमेश्वर आपके जीवन में सही जीवन साथी शामिल करेंगे। He's going to unite you with that person that He has destined for you, and you're going to be very happy. जो व्यक्ति परमेश्वर ने आपके लिए चुना है, उस व्यक्ति के साथ परमेश्वर आपको एक करेंगे, आप बहुत ही संतुष्ट हो जाएंगे। With this belief, pray for that person from now on itself. ये विश्वास रख के उस व्यक्ति के लिए अभी से आप प्रार्थना करना शुरू कर दें। Pray that God will prepare them also. आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको भी तैयार करेंगे। Pray that God will give understanding between both of you. आप प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आप दोनों के बीच एक समझ की आत्मा दें। Pray that God will bless them. आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें आशीष दें। Claim that person and start praying for them. उस व्यक्ति का दावा करके उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें। Pray that God will use both of you together to accomplish His will. आप प्रार्थना करें परमेश्वर आप दोनों का जीवन का उपयोग करेंगे उनकी योजना को कायम करने के लिए। Start trusting in Him that He's already given you this person and claim them and pray for them. आप परमेश्वर पे भरोसा करें, परमेश्वर ने इस व्यक्ति को आपको दिया है, इस बात का दावा करके प्रार्थना करें। Indeed, this month, God is going to pour His love through the Holy Spirit into each one of our heart. सचमुच इस महीने में परमेश्वर हम सभी के दिल में अपना प्रेम पवित्र आत्मा के माध्यम से उंडेलने वाले हैं। And your heart is going to be full. आपका दिल भर जाएगा। Shall we pray with this belief? आइए इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना में चलें। Lord, we receive this marvelous love. पिता इस बेहतरीन प्रेम को हम ग्रहण करते हैं। God's love, परमेश्वर का प्रेम which flows into every part of our life, जो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र पे बह जाती है, which flows into every relationship we hold. हमारे हर एक रिश्ते में बह जाती है। Let there be pure love, Lord. प्रभु वहाँ बिल्कुल शुद्ध प्रेम हो जाए। No place for filthy lust. कोई भी अवांछित वासना का जगह ना रहे। Take it away from us, Lord. हमारे जीवन से इसको दूर कर दे। Let us not think and desire with lust, हम जो है बिल्कुल गलत भावना से सोचे नहीं, but with a pure love of God. लेकिन परमेश्वर की पवित्र प्रेम के बारे में सोचें। Not wanting our own desires. हमारा खुद का चाहत को हम पीछा ना करें। That will make us break apart from our family. वो हमारे परिवार से हमें दूर कर देगी। That will make us live all alone by ourselves. वो रिश्ता हमें बिल्कुल अकेला कर देगा। We don't want to live only for our own desires, Lord. हमारे खुद के जीवन के लिए हम जीना नहीं चाहते हैं प्रभु। Lord, help us love like you love. हमें मदद करें ताकि जैसे आप प्रेम करते हैं वैसा प्रेम हम भी करें। Sacrificial love. त्यागपूर्ण प्रेम, Unconditional love. जिस प्रेम में जिसमें कोई भी कंडीशन ना हो। Faithful love. विश्वास योग्य प्रेम, Pure love. पवित्र प्रेम। It is flowing into the hearts of each of your children आपके हर एक बच्चों के दिल में ये बात प्रवेश कर रही है। and helping them, their relationships to be filled with your pure love. उनका रिश्ता आपका पवित्र प्रेम से भर जा रहा है। They will find the right love in their life, Lord. अपने जीवन में सही प्रेम वो पा लेंगे प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, In Jesus' name, यीशु के नाम से amen. आमेन। My friends, you're going to see great miracles happen. मेरे मित्रों, आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। Your situation's becoming more beautiful. आपकी स्थिति बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। Let us know your testimonies. आपकी गवाही हमें बताएं। Contact our prayer towers and tell us, हमारे प्रार्थना भवन में संपर्क करके बताएं। or contact the email address that you see on the screen. पर्दे में जो ईमेल एड्रेस है उसमें आप शामिल हो जाएं। We want to know how God has changed your life and tell others also that there is hope. हम जानना चाहते हैं परमेश्वर किस तरह से आपके जीवन को बदला है, औरों को भी बोले कि वहाँ उम्मीद है। Enjoy this month with the right love. इस महीना सही प्रेम का आप आनंद ले लें। God bless each one of you. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।